Assalamu alaikum students. Did you see in this clip Indian weavers? Yes, they were weaving and spinning the cloths. So I welcome you today in Poetry Time. Today we shall learn a new poem. This is the second poem in your syllabus, that is Indian Weavers, composed by Sarojini Naidu. This is a very popular poem composed by Sarojini Naidu. It is a short poem with a great symbolic beauty and it is full of significance. But before we move further, let us know more about our poetess. Sarojini Naidu, one of the most celebrated poets of India. She was a freedom fighter. She was born in 1879 and died in 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was a very important figure in India's struggle for independence. She was a great orator, prolific writer, a true lover of humanity, a lover of the nature, and of course, she was a gifted poetess. Her work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. नाइटिंगल पता है आपको? बुलबुल कहते हैं उसको, भारत की बुलबुल उनको कहा जाता था. क्यों? Because of her poetry. It had lyrical quality in it. Writing poetry was her hobby since her childhood. She became the governor of the United Provinces in 1947. She was the first woman to hold the office of the governor in independent India. So, Sarojini Naidu, she was a freedom fighter, and because of her poetry, her artistic qualities, she was given the title of Nightingale of India. We will come to know in this poem how she, in such a short poem, she has given, she has used full of symbolism and imagery. And let us move on to the poem now. So, Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each, that is quatrain. Means every stanza has got 4 lines. यानी वो जो construction होता है उसको कहते हैं quatrain. The poetess talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at 3 particular times of the day. जैसे break of day, फॉल ऑफ नाइट एंड चिल मूनलाइट. ये जो 3 जो टाइम्स है डे के, इसमें उन लोग 3 टाइप के कपड़े जो है बुन रहे हैं. तो उसके बारे में हमको हमारी जिंदगी पूरी हमको दिखाई देती है और कैसे वो हमको दिखाई देगी हम इस पोएम में आगे देखेंगे. Metaphorically, each time and the dress weaved in that time symbolizes a particular stage of human life, namely birth, marriage, and death. See, our poem has 3 stanzas. First stanza symbolizes birth, childhood. Second stanza, marriage, that is adulthood. And the third stanza symbolizes death, that is the end of life. So the poetess relates these 3 stages to different colors and different times of the day. तो किस तरह से ये कपड़ा बुनना और अलग अलग कलर के जो कपड़े बुन रहे हैं हमारे इंडियन वीवर्स, और वो अलग अलग दिन के वक्त में बुन रहे हैं, तो उसमें और लाइफ में क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह से कंपेयर किया गया है, किस तरह से इमेजरी यूज़ की गई है, सिंबलिज्म यूज़ किया गया है बहुत ही खूबसूरती से, वो हम इस पोएम में देखेंगे. इंडियन वीवर्स. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay?
Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving, solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. By Sarojini Naidu. This poem, Indian Weavers, is a small lyric in 3 stanzas of 4 lines. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पोएम 3 स्टांजाज में है और हर स्टांजा में 4 lines है. This poem, each of these stanzas are included in the folk songs section of the Golden Threshold. In each stanza, a question is asked in the first 2 lines. Now, if you see first stanza, weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? देखिए question पूछा गया है. Second stanza, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Again a question is asked. Third stanza, weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? Again here the question is asked. Now here, the first 2 lines, in the first 2 lines, the question is asked, whereas the answer is given in the next 2 lines of each stanza. If you see over here. So actually weaving is one of the most important folk vocations of India. And here in 12 lines, the poetess had provided a symbolic representation of man's journey from birth to death. And here weavers are also weaving from morning till night. So before we move on to the details of the poem, let us first focus on the rhyming words. If you see first stanza, now here, day, gay, wild, child. So the rhyming words of the first stanza are day, gay, wild, child. So we begin how the rhyme scheme will go. Day and gay, they rhyme with each other. So here we will write A. Whereas wild and child, they rhyme with each other. So it will be B, B. If we move further on the second stanza, again, your night, bright, they rhyme with each other. Green, queen, they also rhyme with each other. So again we will have here A, B. Right? Then when we move on to the third stanza, still, chill, cloud, shroud. So still and chill, they rhyme with each other. That is A. And cloud and shroud, they rhyme with each other. That is B. So here, the rhyming words are day, gay, wild, child from first stanza, night, bright, green, queen from second stanza, and still, chill, cloud, shroud from the third stanza. So the rhyme scheme of the entire poem is A, B. Now let us see first stanza. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Now see here, weavers. Who are the weavers? People who knit clothes. यानी जो कपड़े बुनते हैं वो कौन होते हैं? Weavers होते हैं. Break of day. Break of day is early morning. बहुत ही सुबह में जल्दी उन लोग अपना काम शुरू कर देते हैं weaving का. Why do you weave a garment so gay?
Gay, it's beautiful, bright and beautiful garment. So here the question is asked, poetess has observed. What has she observed? क्या देखा है उन्होंने ऑब्जर्व किया है? वीवर्स क्या कर रहे हैं? दे आर वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. सुबह सुबह में जल्दी उन लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बुन रहे हैं. और वो कपड़ा कैसा है? गे, ब्यूटिफुल, ब्राइट. इट्स अ ब्यूटिफुल क्लॉथ. दे आर वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. So she is asking them why they are weaving such a beautiful and bright cloth. So see in the next two lines, the weavers are replying, blue as the wing of a halcyon wild. अब ये halcyon क्या है? Kingfisher bird. Wild kingfisher bird को क्या कहते हैं? Halcyon. We weave the robes of a newborn child. अब ये किसके कपड़े बुन रहे हैं उन लोग? न्यू बॉर्न चाइल्ड के. तो दिस इज द चाइल्डहुड स्टेज. जैसे मैंने कहा ना, ये पोएम के जो 3 स्टांजाज है, हम लोगों के ह्यूमन लाइफ के 3 फेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से. सो द फर्स्ट फेज इज द फेज ऑफ चाइल्डहुड. सो हियर द वीवर्स रिप्लाई, दे आर वीविंग इट फॉर द ड्रेस ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड. इसलिए उन्होंने कौन सा कलर लिया है? ब्लू कलर. और किस तरह से उसको कंपेयर किया है ब्लू कलर को? एज द विंग ऑफ अ किंगफिशर. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड. यहाँ पर जो डॉन है यानी फजर का जो वक्त है, सुबह का, ब्रेक ऑफ डे, इट सिंबलाइजेस बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी द बर्थ ऑफ न्यू लाइफ. एक नई जिंदगी पैदा हुई है. सो दैट इज द phase of childhood, and this is the phase of full of joy and happiness. So अब हम लोग डिटेल में एक एक लाइन देखेंगे यहाँ पर. The poetess says that the weavers start their work in the morning and they make bright garments in blue color as the wings of the kingfisher. When the poetess asks the question, वीवर्स टेल दैट दे आर वीविंग द गारमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. एक छोटे से बच्चे के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बुन रहे हैं. कौन से कलर के? ब्लू. और उसको किससे कंपेयर किया गया है? विंग्स ऑफ द किंगफिशर. इट रिलेट्स टू द चाइल्डहुड ऑफ अ पर्सन. द स्टेज इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, होप, ब्यूटी. देर इज नो सॉरो. कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता. सबसे बेहतरीन वक्त जो होता है इंसान के जिंदगी का, वो उसका बचपन होता है. सो द चाइल्डहुड इज मोर अट्रैक्टिव लाइक ब्लू कलर. बहुत अट्रैक्टिव होता है ब्लू कलर की तरह. ब्रेक ऑफ डे इज मेटाफोरिकली यूज्ड फॉर द बर्थ एंड द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, विच इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द वीवर्स. जैसे मैंने जस्ट कुछ देर पहले कहा कि ये फजर का वक्त है, सुबह का वक्त है, बिगनिंग ऑफ डे और बिगनिंग ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है. दिन शुरू होता है डॉन से, और हमारी जिंदगी का पहला जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है? बचपन होता है. तो ये सबके लिए खुशी का वक्त होता है. सो दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर एवरीवन. इवन द वीवर्स आर वेरी हैप्पी एट दिस टाइम. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. अब ये वीवर्स क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन रहे हैं. अब वक्त क्या है? फॉल ऑफ नाइट. इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग. इवनिंग का वक्त हुआ है और उन लोग कपड़ा बुन ही रहे हैं. Why do you weave a garment so bright? कैसा गारमेंट है? कपड़ा कैसा है? ब्राइट इन कलर. अब ये जो कपड़ा है मल्टी कलर्ड है, इसमें एक से ज़्यादा कलर्स यूज़ किए गए हैं. तो यहाँ पर उन लोग खुश हैं, उन लोग कपड़ा ब्राइट और मल्टी कलर्ड कपड़ा बुन रहे हैं. तो शी इज आस्किंग देम फॉर whom they are weaving a cloth of such a variegated colors. इतना मल्टी कलर्ड कपड़ा किसके लिए बुन रहे हैं उन लोग? तो what the weavers are replying, see, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. किस तरह से? प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, यानी कैसे कलरफुल पिकॉक के होते हैं ना, फेदर्स होते हैं पिकॉक के, प्लूम्स होते हैं. प्लूम्स यानी क्या? फेदर्स. पिकॉक के फेदर्स कैसे कलरफुल होते हैं, कितना खूबसूरत लगता है जब वो अपने फेदर्स को फैलाता है.
तो उस तरह से ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं, मैग्निफिसेंट एंड कलरफुल लाइक द फेदर्स ऑफ अ पिकॉक. क्या है ये? पर्पल एंड ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. अब ये ब्राइड है, क्वीन क्या है हमारी यहाँ पर? दुल्हन है, ब्राइड है, और उसके वेल के लिए कपड़ा वो बुन रहे हैं. इट्स अ ब्राइडल वेल स्पेशली टू कवर द फेस ऑफ अ ब्राइड. दुल्हन का जो चेहरा ढकने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है उसको हम लोग चुनरी भी कह सकते हैं. सो फॉर द ब्राइडल वेल्स द क्लॉथ हैज बीन वोवन, और बहुत ही ब्राइट कलर है. ये जो फेज होती है ये एडल्टहुड है. ये जो फेज़ है ये खुशियों की फेज़ होती है. हम लोगों की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक सेटल होने पे जाती है. और हर इंसान की ज़िंदगी में जो मैरिज है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है. एक सेटल होता है इंसान अपनी लाइफ में. अप्स एंड डाउन्स उसके लाइफ में आते हैं. तो ये जो कलर्स है, मल्टी कलर्स, ये क्या बताते हैं? स्प्लेंडर ऑफ लाइफ. जैसे कि खूबसूरती है पिकॉक के पंखों में, उसी तरह से खूबसूरती है लाइफ में. दुख है, खुशी है, मज़ा है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है. तो ये हमको इस फेज में पता चलता है. दैट इज़ द फेज ऑफ एडल्टहुड. So here in the evening the weavers are weaving attractive garments in purple and green like the plumes of peacock. जनरली इंडिया में जो शादी होती है वो शाम के वक्त ही होती है, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली वो वक्त यूज किया गया है फॉल ऑफ नाइट का. Now here when the poetess asks a question, they tell it's a marriage veil of a queen. दिस सजेस्ट द यूथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी उसका जो यूथ है, यंग एज है, वो यहाँ पर सजेस्ट करता है, बताता है. दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, एंजॉयबल, अट्रैक्टिव. सो दैट्स वाई द एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन द पोएम लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन. फॉल ऑफ नाइट यहाँ भी थोड़ा सा मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है फॉर एडल्टहुड. ये इंसान की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होती है. इट इज़ अ फेज ऑफ मेरी डेज दैट ब्राइटन्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. एट द सेम टाइम एडल्ट्स फेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. बहुत ही खुशी का वक्त होता है, सेटल होता है इंसान, एक स्ट्रगल होता है लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रगल में भी एक अलग ही मज़ा होता है. सो दिस इज़ द फेज एवरी ह्यूमन्स दे कम अक्रॉस. हम सब जीते हैं इस वक्त को. वीवर्स वीविंग solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस टोन है पोएम में. Weavers weaving solemn and still. Solemn, that is serious. बहुत ही सीरियसली और शांति से. Still, they are still at work. और कुछ उन लोग बुन रहे हैं. Their mood is serious. They are totally silent. And what do you weave in the moonlight chill? इस वक्त में, रात के वक्त में, cold moonlight, रात हो गई है. What are they weaving? This is the question asked because they are weaving very seriously and silently. तो पोएटेस को भी ये सवाल उठ गया है कि क्या ऐसा बुन रहे उन लोग इतना सीरियसली रात के वक्त में. White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. अब फ्यूनरल का मतलब क्या है? ब्यूरियल, क्रिमेशन, लास्ट राइट्स, जो अंतिम संस्कार होते हैं, तदफीन के वक्त जो होता है, दैट इज फ्यूनरल. एंड श्राउड, श्राउड इज अ क्लॉथ फॉर कवरिंग डेड बॉडी, जिसमें डेड बॉडी को कवर करते हैं, दैट इज श्राउड. सो हियर द मूड इज टोटली सीरियस. क्या हुआ है? इन द कोल्ड मून लाइट द पोएटेस फाइंड्स द वीवर्स आर स्टिल एट वर्क. एकदम शांत है उन लोग. दे आर साइलेंट. Their mood is serious and they are now weaving a white cloth. How the cloth is compared?
इट्स वाइट एज अ फेदर, वाइट एज अ क्लाउड. फेदर की तरह वाइट है, क्लाउड की तरह वाइट है. तो पोएटेस ने उनको सवाल पूछा है कि क्या इस वक्त में तुम बुन रहे हो. सो दे रिप्लाई दैट दे आर वीविंग इट फॉर द फ्यूनरल श्राउड ऑफ अ डेड मैन. अंतिम संस्कार के लिए, तदफीन के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा एक डेड मैन के लिए बुन रहे हैं. So here the chill of the moonlight, it's a symbol of death. This is the last stage of life. तो यहाँ पर एडल्टहुड के बाद में ओल्ड एज आता है, और ओल्ड एज के बाद जो आखिरी वक्त होता है हम लोगों का, द एटर्नल ट्रुथ ऑफ लाइफ, जिसको हम कभी भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. ये ट्रुथ है हमारी जिंदगी का और ये होके रहेगा, एंड दैट इज द डेथ. Weavers weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? So in the moonlight, that is the deadly hour of night, weavers' attitude is changed. They become serious, grieved and full of sorrow. बहुत दुखी दिख रहे हैं उन लोग, कुछ seriousness है उनके अंदर. The garment is white in color, like feather and cloud, that is colorless, lifeless. कोई कलर नहीं है, it is of white color, जैसे कि फेदर और क्लाउड. दे आर वीविंग द क्लॉथ्स ऑफ अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसके तदफीन के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं वाइट कलर का. इट इंडिकेट्स द फाइनल स्टेज ऑफ अ पर्सन. द वाइट कलर फेदर एंड क्लाउड, दे सिंबलाइज द एंड ऑफ अ लाइफ. A feather, like feather has come out of the wing and now it is of no use. जैसे कोई फेदर है, पंख है पंछी का, वो अगर बाहर निकल जाता है, विंग्स से गिर जाता है, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है. एंड द क्लाउड इज मूविंग, वो एक जगह पे नहीं रहता है, टिका रहता है, वो मूव करते रहता है. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी वोंट बी एबल टू सी द क्लाउड इन इट्स एक्चुअल प्लेस. वहाँ से वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा. इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी होती है. इंसान पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, और आखिरी क्या है, मौत है. तो उसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस बचता ही नहीं है इस दुनिया में. So the poetess compares the white garment or cloth metaphorically with a quill and a white cloud. ये जो feather है quill, उसके साथ और white cloud के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर comparison हो रहा है अपनी आखिरी वक्त का, ज़िंदगी के आखिरी वक्त का. The phrase cool moonlight is metaphorically used as the final phase of human life, that is death, which is eternal truth, which is the final destination, or you can say final rest. बस यहाँ पर हम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. ये eternal truth है, इसको टाला नहीं जा सकता है. सो यहाँ पर cool moonlight उसी से कंपेयर किया गया है, हम लोगों की आखिरी destination, final destination of life, that is death. So the last two lines, they create the feelings of pathos in minds of the readers, the poetess and the weavers, of course. जब हमने पहला स्टांजा पढ़ा था तो इट वॉज बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक खुशी होती है, खुशी का माहौल होता है. देन मैरिज, एडल्टहुड, एनर्जी होती है, एक अगेन खुशी का माहौल होता है. लेकिन जैसे ही हम किसी के मौत की खबर सुनते हैं, एक ऐसे सन्नाटा सा आ जाता है ज़िंदगी में. ऐसा थोड़ा दुख होता है हम लोगों को कि हाँ, हमको भी उसी के वही रास्ते से गुज़रना है. तो यही होता है कि दे आर सीरियस. क्यों सीरियस है उन लोग? बिकॉज दे दिस टू लाइन्स आर ओनली सच. किसी के आखिरी वक्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक फीलिंग कैसी होती है, सीरियसनेस की होती है, जो यहाँ पर हम में भी पाई जा रही है. पोएटेस और ऑफ कोर्स वीवर्स भी उसको महसूस कर रहे हैं. सो हियर व्हाट वी हैव लर्न, 3 stages of life. This poem has been used as an imagery to describe the 3 stages of human life. हमारे ज़िंदगी के 3 stages हमको यहाँ दिखाई देते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ. जिस तरह से वीवर्स वीव फ्रॉम डॉन टू नाइट, सुबह से लेके फजर से लेके रात तक उन लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं दिन के अलग अलग वक्त में, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी 3 स्टेजेस में यहाँ पर
गुजर रही है, जो बताई जा रही है. Each stanza of the poem represents the three important events of human life, that is birth, childhood, youth, adulthood and death, ओल्ड एज में आती है. तो यहाँ पर हर जो फेज है, जिस तरह से दिन का अलग अलग वक्त इस्तेमाल किया गया, जैसे फॉर बर्थ व्हाट इट इज यूज, ब्रेक ऑफ डे, यूथ के लिए फॉल ऑफ नाइट एंड डेथ के लिए चिल मूनलाइट. उसी तरह अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर सिंबल्स की तरह यूज हो रहे हैं. जैसे स्टेज 1 दैट इज स्टांजा 1 में क्या फेज है, बर्थ, चाइल्डहुड, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से. ब्लू कलर क्या बताता है, हैप्पीनेस, इनोसेंस, लॉयल्टी, काम एंड कूल, एक खुशी का माहौल होता है, लॉयल्टी होती है, कोई झूठ फरेब नहीं होता ज़िंदगी में. यहाँ पर हर कुछ अच्छा सा सुकून वाला होता है, इनोसेंस, फुल ऑफ इनोसेंस होता है चाइल्डहुड. सेकेंड स्टांजा जो है ये सिंबलाइज करता है यूथ, एडल्टहुड, जो यहाँ पर आप हम लोगों को मल्टी कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन. क्या बताता है पर्पल एंड ग्रीन, इट्स फेज ऑफ यूथ, अगेन फुल ऑफ हैप्पीनेस, more active you are in this phase, energetic we all are, but at the same time we face ups and downs. एक struggle होता है ज़िंदगी में. ये मतलब यहाँ पर ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसलिए मल्टी कलर्स का इस्तेमाल किया गया है. एंड द लास्ट स्टांजा इट सिंबलाइजेस डेथ, ओल्ड एज, जो एक ही कलर बचता है, वाइट. यहाँ पर जैसे कलरलेस हो जाती है लाइफ, लाइफलेस हो जाती है, सीरियस होती है और बस एक काम, स्टिल हो जाते हैं हम लोग, बस उसके आगे कुछ नहीं. ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है. दिस इज़ द एटर्नल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ. Now we will just see the key points what we have learnt in this poem. Indian Weavers by Sarojini Naidu sums up the life of human beings on earth in three main stages by using symbols like cloths and times of the day. The poem Indian Weavers highlights the craft and skill of Indian weavers. The poetess has very nicely presented three phases of life. The life cycle is befittingly depicted from the work of the weavers. जिस तरह से skillfully Indian weavers सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े बुनते हैं, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी बिगिन होती है चाइल्डहुड से, फिर हम लोग एडल्टहुड में पहुंचते हैं और फिर हम लोग ओल्ड एज में पहुंचते हैं, और उसके बाद में जो एटर्नल ट्रूथ है लाइफ का, डेथ, जो हर कोई फेस करता है. तो ये जो थ्री फेजेस है, बहुत ही खूबसूरती से पोएटिस ने वीवर्स का एग्जाम्पल देकर हमको यहाँ पर बताया है. द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिन्स विथ वन कलर, ब्लू, विच मीन्स जॉय एंड हैप्पीनेस. देन इट कंटिन्यूज विद द एडिशन ऑफ अ नंबर ऑफ कलर्स, मल्टी कलर हो जाती है लाइफ, जैसे ग्रीन और पर्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, विच मीन्स सॉरोज ऑल्सो एंटर इन टू लाइफ along with happiness. Life is more active in this stage than in the first stage. यानी पहले फेज में कोई दुख नहीं होता, दूसरे स्टेज में दुख भी होता है, खुशी भी होती है. तो ये मिक्स होता है लाइफ, जैसे हमारे कलर्स मिक्स हैं यहाँ पर. तो उस तरह से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, लेकिन हम फिर भी हमारी एक्टिविटी कम नहीं करते. हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंड वी कैरी ऑन द वर्क ऑफ आवर लाइफ. वी फेस ऑल दीज स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ. In the final stanza, all the colors vanish away. सब colors खत्म हो जाते हैं, and a single color white remains, which means emotions are connected with life, and when the person dies, emotions also die. जब इंसान का वजूद ही नहीं है, when there is no existence of a person, तो obviously emotions also die. Now we will focus on the figures of speech of this poem. Weavers weaving at break of day. Now here it is alliteration. Now if you see, the sound of W is repeated. So here it is alliteration.
Then it is climax also. The words are arranged in the ascending order. Weavers क्या कर रहे हैं? वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं. सो फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स. देन वी हैव मेटाफर. द बर्थ चाइल्डहुड स्टेज ऑफ मैन इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ अ ब्रेक ऑफ डे. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो ब्रेक ऑफ डे है ये किससे कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली, यानी ये जो ब्रेक ऑफ डे है ये क्या बताता है? बर्थ, चाइल्डहुड स्टेज ऑफ मैन. सो दैट्स व्हाई इट इज मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. नाउ हियर इट इज अगेन एलिटरेशन. नाउ हियर एलिटरेशन क्यों है? यहाँ पर साउंड गे, गारमेंट्स गे, तो जो लेटर का साउंड है जी का वो रिपीट हो रहा है, इट्स रिपीटिंग, सो इट इज एलिटरेशन. नेक्स्ट इट इज इंटरोगेशन. अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एम्फसिस. रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर रीडर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बट वो क्वेश्चन पूछने से रीडर्स होते हैं या जो लिसनर्स होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. आंसर तो उसी के आगे दिया गया होता है. तो सच क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एम्फसिस, सो दैट्स व्हाई इट इज इंटरोगेशन. Then blue as the wing of a halcyon wild. Again it is alliteration because sound of W is repeated. Wing, wild. So this is alliteration. Next it is inversion. Inversion में क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर नहीं होती है प्रोज की. तो प्रोज की करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? As the blue wing of a halcyon wild. यानी जो ब्लू है ये विंग के पहले आना चाहिए था, बट क्या दिया है? ब्लू एज द विंग ऑफ अ halcyon wild. So that's why it is inversion. It is simile. यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है. It is simile because here the comparison is done between a blue colored cloth. It is directly compared to the wings of a halcyon wild. So जब ये डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है तो ये क्या है? सिमिली है. सो मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, whereas simile is a direct comparison. Next we weave the robes of a newborn child. Again it is alliteration because see over here, we, W, weave, W. So here the sound of W is repeated. So it is alliteration. Weavers weaving at fall of night. Now again it is alliteration because here sound of W in weavers and W in weaving is repeated. Then it is climax. The words are arranged in the ascending order. Weavers weaving at fall of night. पहले weavers है, then what are they doing? Weaving. तो words कैसे arrange किए गए हैं? Ascending order में. So it is climax. Then it is metaphor. The adulthood, that is youth, second phase of human is indirectly compared with fall of night. Now see over here. Fall of night. ये एक्चुअली क्या है? सेकेंड फेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज एडल्टहुड. सो दिस इज मेटाफर क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. नेक्स्ट वी हैव व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट. अगेन इट इज एलिटरेशन because here again Y, W and weave W. Sound of W is repeated. Then it is interrogation. A rhetorical question is asked for emphasis. जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बट एक हमको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, तो दैट इज फॉर एम्फसिस सच क्वेश्चंस आर यूज्ड. सो दिस इज इंटरोगेशन. नेक्स्ट वी हैव we weave the marriage veils of a queen. Now again this is alliteration क्योंकि यहाँ पर कौन सा साउंड है? W का साउंड रिपीट किया गया है जो आप देख रहे V और weave में. So that is why it is alliteration. Next we have like the plumes of a peacock, purple and green. Now again here it is alliteration.
प्लूम्स का पी, पिकॉक का पी, ये जो साउंड है पर्पल का पी. सो हियर thrice p has come, so sound of p is repeated. Then simile, अब यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक वर्ड यूज किया गया है. द गारमेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ पर्पल एंड ग्रीन कलर्ड प्लूम्स ऑफ पिकॉक. कैसा कपड़ा है वो? वेल्स ऑफ क्वीन कैसा है? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन. तो यहाँ पर जो गारमेंट है उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है पर्पल और ग्रीन कलर के फेदर्स पिकॉक के जो होते हैं उससे. नेक्स्ट इट इज एंटी क्लाइमैक्स. द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे पहले प्लूम्स ऑफ पिकॉक है, फिर उसमें के एक एक कलर्स को अलग किया गया है. तो आइडियाज वर्ड्स कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो एंटी क्लाइमैक्स. नेक्स्ट वी हैव वीवर्स, वीविंग, सोलेम एंड स्टिल. अब ये भी क्या है? एलिट्रेशन है. देखिए वीवर्स का W, वीविंग का W, तो यहाँ पर साउंड W रिपीट हो रहा है. देन सोलेम का S, स्टिल का S, तो यहाँ पर दो साउंड रिपीट हो रहे हैं, दैट इज W एंड S. So here the sound of the letter W is repeated. Again you can also add over here S is also repeated. Then climax. The words weavers and weaving, they are arranged in the ascending order. पहले weavers है, फिर वो क्या कर रहे हैं? weaving कर रहे हैं. So the ideas, words are arranged in ascending order. So it is climax. Then it is anti-climax also. क्यों? solemn and still, ये descending order में है. पहले serious है, फिर स्टिल हो गए हैं. एक्चुअली अगर स्टिल और सोलेम होता तो वो क्लाइमैक्स होता, लेकिन यहाँ पर कैसा है? सोलेम एंड स्टिल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. सो इट इज एंटी क्लाइमैक्स. देन इट इज टोटोलॉजी ऑल्सो. टोटोलॉजी क्या होती है? दो वर्ड्स सिमिलर मीनिंग के होते हैं, यानी आसपास उन लोगों का मतलब सेम होता है. जैसे सोलेम सीरियसनेस है और उसी की वजह से वो स्टिल हो गए, यानी सीरियस हो गए, कोई हलचल नहीं है, खामोश हो गए हैं. सो हियर वर्ड्स आर ऑफ सिमिलर मीनिंग, सो इट इज टोटोलॉजी. तो ये जो वर्ड्स है सोलेम और स्टिल, ये क्या है? सिमिलर मीनिंग के है, तो दैट इज व्हाई इट इज टोटोलॉजी. देन वी हैव पैराडॉक्स. द लाइन इज एब्सर्ड एज वन कैन नॉट कैरी द वर्क बीइंग स्टिल. ऐसे खामोश रह के कुछ काम, स्टिल यानी कोई हलचल नहीं है, बगैर हलचल के कोई काम कर सकते हैं? नहीं. बट यहाँ पर पोएटेस का ये कहना है कि उन लोग खामोश हो गए. तो ये लाइन कैसी है? थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है, एब्सर्ड लगती है, और जब लाइन एब्सर्ड होती है तो इट इज पैराडॉक्स. सो वन लाइन कैन हैव मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल. अगेन इट इज एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए W का साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे वॉट में W और वीव में W. देन इंट्रोगेशन, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्फेसिस के लिए, सो इट इज इंट्रोगेशन. मेटाफोर. अब यहाँ पर जो है ये मूनलाइट चिल जो है, ये क्या है? ये जो है मूनलाइट चिल, ये लास्ट फेज है इंसान की, दैट इज डेथ. और ऐसा डायरेक्ट वर्ड डेथ नहीं यूज किया गया, मूनलाइट चिल कहा गया है. सो इनडायरेक्टली यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, सो इट इज मेटाफोर. देन इट इज इन्वर्जन ऑल्सो. जैसे द वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर क्या होनी चाहिए थी? व्हाट डू यू वीव इन द चिल मूनलाइट. तो ये जो चिल वर्ड है मूनलाइट के पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? बाद में दिया है, तो दिस इज इन्वर्जन. नेक्स्ट वी हैव वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड. देखो यहाँ पर दो कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है. पहले तो ये रेपिटेशन है क्योंकि वाइट वर्ड यूज किया गया है दो बार, वाइट एज अ फेदर, वाइट एज अ क्लाउड. देन एज वर्ड भी दो बार आया है, एज अ फेदर, एज अ क्लाउड. सो ये रेपिटेशन है क्योंकि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. देन इट इज सिमिली, क्योंकि गारमेंट कैसा है? वाइट है. कैसा वाइट? फेदर जैसा वाइट, क्लाउड जैसा वाइट. सो ये टू कंपैरिजन्स आर देयर, डायरेक्ट कंपैरिजन. जैसे गारमेंट इज, वाइट गारमेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ फेदर and it is also compared to cloud. So that's why it is simile, because there is a direct comparison.
Then next we have white as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. Again, now see here it is alliteration. Now white, W is already there, plus we weave, W. So the sound of W is repeated. Then it is simile, funeral shroud. This is directly compared to the feather and cloud. तो ये जो है यहाँ पर जो ये फ्यूनरल श्राउड है ये किससे कंपेयर किया गया है? फेदर और क्लाउड से डायरेक्टली कंपेयर किया गया है. सो इट इज सिमिली. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed the explanation of the poem. At the same time, poetic devices में हम लोगों ने beginning में ही rhyming words, rhyme scheme देखा है. Then we completed the figures of speech of the poem. And now of course activity, कुछ तो करना चाहिए ना आप लोगों ने, ऐसे ही तो आपको खाली नहीं रख सकते. So poetic creativity, ये जो question है ये 2 marks के लिए पूछा जाता है extract में. So what do you have to do? You have to compose 4 lines on importance of clothes. So यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक poetic mind से 4 lines poem के बनाने हैं. Importance of clothes, अगर आप rhyming words के साथ बनाते हो तो बेहतरीन है, कोशिश कीजिए, या फिर blank words भी अगर आप करोगे तो चलेगा. Then you will have to write an appeal to use handloom products in our daily life. यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्वदेशी products जो है उसके ऊपर थोड़ा सा emphasis दे के एक अपील लिख सकते हैं. Then you have to write a comparing, like a handicraft exhibition is being organized in your college. You're given the task to compare the inaugural function. Write the script for comparing. Last year I had taught you how to write a comparing. So with the help of those notes, you can prepare, a script for comparing for a handicraft exhibition in your college. So your students, we will sum up over here. We have learnt our lives begin with joy, hope, aspirations, movement, happiness. Then our life run with actions, motions, we progress. There is strife, there is struggle, there is achievement. And the end is with sorrow, sadness and grief. यानी हमारी ज़िंदगी एक खुशी, एक होप से शुरू होती है. हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल होती है, खुशियाँ होती है, हम लोग काफ़ी एक्शंस में होते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, एक टेंशन होता है, स्ट्रगल होता है, अचीवमेंट होती है और आखिर में दुख होता है, दर्द होता है. लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोएटेस ने कितनी खूबसूरती से अपनी पोएम में पूरी ज़िंदगी बयां की है. तो यहाँ पर हम रुकते हैं यही एक ख्याल के साथ कि हमारी ज़िंदगी हमको जीनी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करना है हमको. एंड विद दिस फीलिंग, विद ब्रेव हार्ट, वी विल मूव ahead in our life. Till that time, take care. Have a nice time.